خالد یہ بتائیے گا کہ یہ ساری شاعری اب سرائکی بیلٹ میں منتقل ہو گئی ہے، میدانی علاقے میں صرف ٹک ٹاکر ہی پیدا ہو رہے ہیں؟ سر میرے خیال میں چونکہ ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ جو ارد گرد کا ماحول ہے اس کو دیکھ کر بہتر شاعری کر سکتے ہیں. شہری ماحول میں ذرا گھٹن زیادہ ہے. عمارتیں دیکھ کر آپ کیا شعر کہیں گے؟ احمد سلمان کی وہ بات یاد آ گئی، یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا. واہ واہ. یہ کیا کہ سورج پہ گھر بنانا اور اس پہ چھاؤں تلاش کرنا، کھڑے بھی ہونا تو دلدلوں پر پھر اپنے پاؤں تلاش کرنا. واہ بھائی کیا نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر. نکل کے شہروں میں آ بھی جانا چمکتے خوابوں کو ساتھ لے کر، بلند و بالا عمارتوں میں پھر اپنے گاؤں تلاش کرنا. میرا بھی اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ شہر والوں نے بتایا ہے کہ یوں ہوتی ہے، میرے گاؤں میں تو مکاری نہیں ہوتی تھی. اچھا، تو اس کی بنیادی وجہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ماحول ہے ارد گرد کا. اچھا، یہ بھی ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ جی سرائکی بیلٹ کا ماحول، کیا ماحول؟ فطرت کے قریب رہنے والے لوگ زیادہ اچھا شعر کہتے ہیں. جو شہروں کا ماحول ہے یا شہروں کی تیز رفتاری ہے، وہ موقع نہیں دیتی کہ اس بہتر انداز میں شعر کہا جا سکے. ویسے جنید بھائی اس موقع میرے پاس بھی نہیں ہے. میں 150 کلو کا قورمہ جو ہے نا چڑھا کے آیا ہوں، وہ جل جائے گا، جلدی مجھے فارغ کر. فائدہ میں میرا تعارف میں کرانا بھول گیا. میرا نام چنگیزی ہے. چنگیزی؟ ہاں، اور میں شہر کا سب سے فیمس شیف ہوں. اچھا، ایک سے ایک ڈش مجھے بنانا آتی. اچھا، یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دیے کہ آپ شہر کے سب سے فیمس شیف ہیں؟ یہ میرے دوستوں یاروں نے بولا. نہیں، اس نے خود کو خود ہی دی ہے. اصل میں جنید بھائی میرے ہاتھ میں ایک کتاب لگ گئی تھی کہ 30 دن کے اندر شہر کے سب سے اچھے شیف بنے. تو بس کتاب پڑھ لی اور بن گئے آپ. ایسا ہی ہو رہا ہے، سب یہی کر رہے ہیں، جتنے کوکنگ چینل کے شروع آ رہے ہیں دیکھیں. اور شکر کہیں جنید بھائی میں نے اس سے نیچے والی کتاب نہیں پڑھی. وہ کون سی تھی؟ کہ 30 دن میں اچھے ڈاکٹر بنے. میں نے کہا نہیں بھائی، شیف والی ٹھیک ہے. شکر ہے، آپ کی مہربانی ہے. شانی صاحب، آپ کا تو سارے کا سارا اتنا خوبصورت کلام ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ پہلے کون سا سنا جائے. تو اس لیے یہ فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے. آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ جی میں ایک غزل سے ابتدا کرتا ہوں. اسی نے بوئے شکوک دل میں، اسی چنبیلی کا نام دکھ ہے. اسی نے بوئے شکوک دل میں، اسی چنبیلی کا نام دکھ ہے. تمہارے پہلو سے لگ کے بیٹھی ہوئی سہیلی کا نام دکھ ہے. کیا کہنا. وہی نہ جس کی مکین لڑکی نے تیری بستی میں عشق بویا، مجھے بھی درشن کراؤ اس کے کہ جس حویلی کا نام دکھ ہے. تم ان لکیروں میں ایک خوشی بھی تلاش کر لو تو معجزہ ہے کہ میں تو بچپن سے جانتا ہوں میری ہتھیلی کا نام دکھ ہے. ہر ایک رشتہ، ہر ایک جذبہ، وفا، محبت، خلوص، سب کچھ میں اور کیا کیا بتاؤں، حتیٰ کہ یار بیلی کا نام دکھ ہے. دکھ کو کیا خوبصورت انداز میں آپ نے گلوریفائی کیا. واہ یار، کیا گارنشنگ کی ہے دکھ کے اوپر، کمال. یہ اچھا دھاری ہے سن لو صاحب، جسے یہ کاٹے نہ پانی مانگے. ہاں الجھی الجھی سی اس محبت بھری پہیلی کا نام دکھ ہے. یار بہت اعلیٰ، بہت. اچھا خالد ندیم بھائی، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں بھی اور پوری سرائکی بیلٹ میں، بلکہ یہ جدید شاعری میں نے دیکھا ہے کہ غزل پہ زیادہ زور ہے. نظم مشکل ہو گئی ہے یا نظم و ضبط کی کمی ہے یا؟ سر نظم واقعی آج کل جو دور چل رہا ہے، سوشل میڈیائی دور کہا جائے اس کو تو کم نہیں ہوگا، کہ اس میں نظم کی گنجائش نہیں ہے. 2 لائنوں پر آ گیا ہے، 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ پر آپ پہنچ چکے ہیں. تو ان 15 سیکنڈ میں جو 2 لائنیں ہیں شعر کی، وہی سروائیو کر رہی ہیں. یعنی شاعری بھی اب ٹیسٹ سے نکل کر 2020 تک آ گئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن غزل کی صنف کی اپنی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ ہر 20-25 سال بعد اپنے آپ کو دوبارہ سے منوانا شروع کر دیتا ہے. اچھا خالد ندیم بھائی، آپ اپنی خوبصورت نظموں میں سے کچھ عطا کر. تیرا ملنا بھی کیسا ملنا ہے، جیسے خوشبو میں رنگ گھل جائیں، جیسے بارش میں سمفنی سننا، جیسے پھولوں کی آنکھ کھلتے ہی موسموں سے بہار ملتی ہے، جیسے رستے دیوں سے بھر جائیں، چاند اترا ہو اوک میں جیسے،
जैसे धड़कन से गीत मिल जाएं, आंख मिलती है जैसे ख्वाबों से, ख्वाब आंखों को जैसे मिल जाएं, वाह। जैसे शबनम का लम्स पाते ही आबलों को सुकून मिलता है। क्या बात। तेरा मिलना भी कैसा मिलना है, हाँ। जैसे वारिस की हीर सुनते ही किसी रांझे को जोग मिल जाए, वाह, वाह। जैसे लैला से इश्क मिलता है, जैसे मजनू को रोग मिल जाए, जैसे लब पर दुआ मचलते ही कोई तारा फलक से टूटा हो, जैसे जंगल के एक मुसाफिर को कोई कुटिया दिखाई दे जाए, जैसे ईसा को ऐन सूली से कोई जिंदा उठा के ले जाए। बहुत खूबसूरत, कमाल। अच्छा खालिद भाई ये बताइएगा कि ये फैसला करना हमारे लिए भी मुश्किल है कि आपकी जो बहुत मशहूर आपकी गज़लें हैं, नज़में हैं, उनमें से सबसे मशहूर कौन सी है? सर सबसे ज्यादा मारूफ मैं समझता हूँ कि गजल को बहुत ज्यादा पजीराई मिली, मैं आपको सुना देता हूँ। वो सुनना चाहेंगे हम जरूर जी। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, आए यार बहुत खूबसूरत। गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं वाह। आएंगे, हाय 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 वाह। हाय हाय। हम ना मजनू है ना फरहाद के कुछ लगते हैं, हम किसी दश तमाशे में नहीं आएंगे, हाय 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 बहुत अच्छा। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं आएंगे, दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, यार ये बहुत अच्छा। हम किसी और दिलासे में नहीं आएंगे। क्या बहुत कहने। खूबसूरत। और जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। कमाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जबरदस्त माहौल बना हुआ है। देखिए हम लोग किचन में होते हैं, ये खाना जो है ना वो अगर अच्छा हो तो शायरी भी अच्छी लगती है। आज देशबुक में जब मैं आया तो आप लोगों के लिए खास डिश बना के लाया अपने हाथों से, और 16 साल में सीखी है वो। क्या? थैंक यू वेरी मच। कौन सी डिश लाए हैं? चाय रस। उसमें चाय आपने बनाई है या रस आपने बनाया? नहीं, छपरा होटल से लेके आया हूं, क्योंकि भाई मैं ये लोकल चीजें नहीं बनाता, मैं इंटरनेशनल शेफ हूं। शानी साहब, आपका एक कलाम है जो आपने बहुत अरसा पहले लिखा और अभी भी इतना ही वायरल है, लोग स्टेटस लगाते हैं, सारी खुशियां मिला के देखी हैं, तेरे जाने का गम ज्यादा है। हाँ वाकई। जी प्लीज। बिल्कुल, ये शेर वैसे शानी साहब के कई जो शेर हैं वो हाँ। स्टेटस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मेरा ख्याल लिख दिया करें ब्राय स्टेटस शायरी। जी। यानी मैं आपको अपनी शायरी याद नहीं, किसी से तो नहीं लिखवाते, आप खातून तो नहीं? कर्ज यादाश्त का वाकई मसला है। शायर को जो सबसे पहले बीमारी होती है वो नसियान है। आपने जितनी शायरी आपको याद है कहाँ याद है? और देखता जितने हूँ। खूबसूरत शेर आपको याद है, आप एक मयार हैं अच्छी शायरी का। मैं सुना देता हूँ जी। मेरी आंखों में नम ज्यादा है, हाँ। यानी मुझ पर करम ज्यादा है, वाह, 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 वाह। करम ज्यादा, वाह यार। तुझको पूरा बयां न कर बैठूं, आज जोरे कलम ज्यादा है, आए वो छीन ले तुझे मुझसे, जिसके सीने में दम ज्यादा है, बहुत अच्छी तड़ियां। सारी खुशियां मिला के देखी हैं, तेरे जाने का गम ज्यादा है। शानी साहब, आपका एक कलाम है, अदाएं तुम बना लेना इशारे मैं बताऊंगा। ये दिल टूटने से पहले का है या बाद का है? जाहिर है पहले का है। चले फिर हो जाए। अदाएं तुम बना लेना, इशारे मैं बनाऊंगा, तुम्हारे फूल जज्बों को शरारे मैं बनाऊंगा, तुम्हारा साथ शामिल है तो फिर तुम देखते आओ, जमीनों आसमां के अब किनारे मैं बनाऊंगा। जमीनों आसमां के। और शेर देखिएगा जुनैद भाई, अगर तुम फैसला कर लो मोहब्बत ओढ़ लेने का, तो फिर इस शाल के ऊपर सितारे मैं बनाऊंगा। ब्यूटी, एब्सोल्यूट ब्यूटी। तुम्हारा काम इतना है फकत काजल लगा लेना, तुम्हारी आंख की खातिर नजारे मैं बनाऊंगा, तुम्हारी आंख की खातिर नजारे मैं बनाऊंगा। तुम्हें बस मुस्कुराना है, तुम्हें बस गुनगुनाना है, मोहब्बत के लिए नगमे तो सारे मैं बनाऊंगा। तुम्हें इजाजत है, तुम बेलना कस के मारो मुझे बेगम, कि फिर टूटे हाथों से भी खाना मैं बनाऊंगा। अच्छा शानी साहब, आप हमें ये बताएं कि आपको किस कलाम से अंदाजा हुआ था कि लो जी अब गुड्डी चढ़ गई है? नहीं, ये अंदाजा तो अभी तक भी नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि अब कोई काम कर लिया है। माशाल्लाह आपके डंके तो ऐसे तो ना कहें।
बस ये है कि बहरहाल ये एक सब्र आजमा और तवील दौर का किस्सा है कि 91 से नैम क्लास से मैंने शेर कहना शुरू किया अच्छा और आज हम 2026 कोई में बैठे खतरनाक हैं। पीरियड होता है 7वीं 8वीं हाँ 9वीं जी, हाँ क्लास, बस इससे अगर खैरियत से गुजर जाए तो गुजर फिर गए बंदा तो डॉक्टर हाँ। इंजीनियर बन जाता है, वरना ये शायद वरना शायर या शायर डॉक्टर तो ऐसा गाहे गाहे ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है शायरी में कि अवामुन्नास की तरफ से पजीराई मिलती है। और मैं मेरे ख्याल में बहुत खुश नसीब शख्स वाक़ हुआ हूँ शायरी में कि मेरी बहुत सारी गज़लें और अशार जो हैं वो मारूफ हैं। नहीं, फिर भी कोई ना कोई संगे मील तो जरूर होता है जहाँ से बंदा सोचता है कि नहीं यहाँ से बात बनी थी। तो वो गज़ल मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ, वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मारूफ हुई। ख़त के छोटे से तराशे वाली जो गज़ल है उसका अब मेरे यूँ समझते हैं कि वो जैसे डॉक्टर वहीद अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो हम शायर होते हैं वाली नज़्म उनका कौमी तराना है, तो इसी तरह मेरे बारे में भी यही कहा जाता है कि ख़त के छोटे से तराशे वाली गज़ल जो है वो इसका कौमी तराना बन गया इसका तराना है। अच्छा वो है। आनंद भाई, आप अपने आप को नौजवान नस्ल में शुमार करते हैं या सीनियर शोहरा में? मैं ज़ाहिर है अब 50 का हो चुका हूँ, हाँ, लेकिन शायरी जो है वो ज़ाहिर है सबके लिए होती है, हर उम्र और हर तबके के लिए होती है। लेकिन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर बंदे को फ़िक्रमंद रहता है शायर कि उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा कहा जाए कि जो उनके तबा पर भी उनके लिए भी पसंद किया जाए और उनको भी कुछ बेहतरी की तरफ वो आएँ, हाँ। ना कि वो जिस तरह का आजकल सोशल मीडियाई दौर है। कोशिश की जानी चाहिए दीगर शोरा की जानिब से भी हाँ। कि उनको कुछ ऐसा शेरी ज़ौक़ उनका बनाना चाहिए कि वो अच्छे शेर की तरफ। अच्छा, जदीद शोरा को रिप्रेजेंट करने वाले जो नौजवान शोरा, उनमें आपके पसंदीदा कौन है? हमारे मियाँ वाली से एक शायर हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, वो हैं, उनका नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान। जी हाँ, अब्दुर्रहमान आबी, और आजकल वो किसी और नाम से भी कलमी नाम से लिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत शेर कह रहे हैं। सवारी सिर्फ एक उतरी है और मैं भरी बस में अकेला रह गया हूँ। यार बहुत वाह, आला भाई, वाह। बहुत आला, बहुत आला। क्या सवारी सादा सिर्फ अंदाज में एक जज्बात का उतरी है इज़हार, वाह वाह। और मैं भरी बस में अकेला अकेला रह रह गया। गया हूँ। ओए हाँ, ये होए। यार बहुत अच्छा वो अभी बहुत बहुत खूबसूरत अच्छा। शेर कह रहे हैं। हाँ। बहुत अच्छा है। यानी जुनैद साहब उस हांडी में सिर्फ 2 लोग जा रहे थे। आपने गौर नहीं फरमाया शेफ साहब, उसने भरी बस कहा है। भरी बस। अच्छा सुहाना जी, जुनैद साहब आप लोगों को जलने की कोई खुशबू तो नहीं आ रही? लगता है आप चूल्हे पे कुछ रख के भूल गए। हाँ नहीं, मैंने तो आज तक चूल्हे पे कुछ रखा ही नहीं। तो शेफ कैसे बन गए? भाई मैं तो टिकटॉक का वो हूँ शेफ। ओह! लेकिन सुहाना जी आज आपके लिए स्पेशल डिश बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? मुर्गी के पंजे, हाँ। ना घर के ना घाट के। यानी साहब आपका ताल्लुक है लाला अताउल्लाह ईसा खिलवी के इलाके से, लेकिन आपके बाल और आपकी लुक से आरिफ लोहार साहब जैसी। तो आप मुझे ये बताएं किसी सिंगर ने आपको कोई कलाम गाया है? कि मेरी लुक सिर्फ आरिफ लोहार जैसी नहीं है। हमारे इलाके के बड़े मारूफ सिंगर हैं ज़ीशान रोकड़ी के वालिद, अच्छा, 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 अच्छा। उनसे भी और- मेरी लुक बहुत अच्छा, मिलती अच्छा, है, अच्छा, शक्ल अच्छा। मिलती है। आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में है बड़े बाल। हाँ, हाँ। हम्म। हाँ, तो नहीं, आप पे मैं तो अच्छे लग रहे आपने हैं। जानबूझ के तो नहीं लंबे बाल रखे हुए और आरिफ लोहार जैसा हुलिया बनाया हुआ कि अगर किसी जगह शायद नहीं मुशायरा सर, पढ़ने उनके गए और वो कहते हैं कि चलो जी ऐ तो हो गए ਤੁਹਾਡੇ मुशायरे दे पैसे हुन जरा गा के भी सुनाओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ दूने पैसे दे सर दें। मैं तरन्नुम में कुछ भी नहीं पढ़ सकता, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। वो आ, आपकी आवाज से भी लग रहा है कि हाँ जी, मैं जैसी बिल्कुल किस्मत ऐसा पाई है आपने। तरन्नुम की कभी कोशिश ही नहीं की। वैसे हमारे ज़िला को आपको पता है कि शेर व नगमा की सरजमीन कहा जाता है, हाँ। लेकिन हर दूसरा तीसरा बंदा बहुत सुरीला है, हम्म, लेकिन मैं सिर्फ शेर कहता हूँ, तरन्नुम में कुछ नहीं कह सकता। वाह। चलिए फिर सुना दे, मुझे बताया गया था यहाँ मोहब्बत है। मुझे बताया गया था यहाँ मोहब्बत है, आहा। हम्म। मैं आ गया हूँ, दिखाओ कहाँ मोहब्बत। आहा, वाह। आहा। यहाँ के लोग बहुत दुश्मनी निभाते हैं, इसी से होता है साबित यहाँ मोहब्बत है। आहा। आहा। तो रूह जिस्म का रिश्ता बहाल है तब तक, हमारे बीच ये जब तक रवां मोहब्बत है। आहा। वाह, बहुत आहा। खूबसूरत। और ये राज मुझ पे खुला है तुम्हारे छूने से, हम्म। हवस चराग है लेकिन धुआं मोहब्बत है। आहा। वाह। अच्छा शानी साहब, ये जिस गांव की जिंदगी का भी आप जिक्र कर रहे थे उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आपकी शायरी में भी नजर आती है, बेशक। तो इस हवाले से कुछ और हमें इनायत फरमाइए। जी, मैं एक ताज़ा गज़ल, अभी एक शेर आपको सुनाया था उस हाँ, गज़ल हाँ। का, पूरी गज़ल अब मैं आपको सुना देता हूँ।
सादा दिल लोग थे, अयारी नहीं होती थी, इस कदर सोच भी बाजारी नहीं होती थी। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे। और शेर देखिएगा, इश्क को रोग कहा करते थे लेकिन फिर भी हम्म, जानलेवा तो ये बीमारी नहीं होती थी। बहुत आला, बहुत अच्छे यार। कुछ न था फिर भी यहाँ लोग जिए जाते थे, हाँ। इस कदर पहले तो दुश्वारी नहीं होती थी। आहा, बहुत अच्छा। और शहर वालों ने बताया है कि यूं होती है, हम्म, मेरे गांव में तो मकारी नहीं होती थी। वाह वाह, बहुत अच्छा। और सब्र को शुक्र का तड़का भी लगा लेते थे, कभी रोटी कभी तरकारी नहीं होती। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, एक रवायती सा सवाल है, किस उम्र में मोहब्बत हुई थी और कब शायरी स्टार्ट की? मेरा ख्याल में मेरी उम्र जो थी उस वक्त हम्म, वो गालिबन 17 साल थी। अच्छा, मियाँ वाली को ज़हन में रखा जाए तो खासी ताखीर से आपने मोहब्बत फरमाई है, 17 साल। वरना मियाँ वाली जैसे इलाके में तो 12-13 साल की उम्र में फर्ज हो जाती है। हाँ, मैं जरा ज्यादा सियाना था, अच्छा, सोच समझ के मोहब्बत की आपने? यूं समझ लो। अच्छा। लेकिन फिर भी मोहब्बत तो कर ली ना आपने। तो वो मोहब्बत कामयाब रही? मेरा ख्याल है कि कामयाब ही होती है। कामयाबी होती है, हाँ, उसको वाह। नाकाम कभी नहीं कहा हाय। जा सकता। अच्छा जी, कोई ताज़ा कलाम जो सिर्फ हमारे लिए हो, हमारे शो के लिए हो? जी बिल्कुल, मैं ये पहली दफा ही ये गजल पढ़ूंगा, जी, जी। ओह, ये आपके लिए ही है और Thank आपके शो you. के लिए। तुम्हारे आने से मुझ पर खुला मैं जिंदा हूँ, हम्म, मेरे तो वहमो गुमा में न था मैं जिंदा हूँ, ओहो, बहुत। और खुदा का शुक्र मेरा सामना हुआ तुझसे, हम्म, मुझे किसी ने बताया न था मैं जिंदा हूँ। वाह वाह वाह, मैं एक वक्त में दो हैरतों की जद पे सद रहा, पे रहा। वो मुझको छोड़ के जा भी चुका मैं जिंदा हूँ। वाह वाह, तुम्हारा लम्स ही पत्थर में जान डालता है, कभी कभी तो मुझे भी लगा मैं जिंदा हूँ, बहुत। मगर वो गिद्ध मेरी जाने भी बढ़ते आ रहे थे, मैं एक एक से कहता रहा मैं जिंदा हूँ। यार ये बहुत एक क्लास है। क्या कहने। कमाल। आखिरी शेर में तो कमाल कर दिया आपने। बड़ी वाह वाह वाह। मैंने मुर्गा पका के खा भी लिया। हाँ। जनाब भाई, मैंने मुर्गा पका के खा भी लिया। अच्छा। वो कोने से नमूदार हुआ, कहा मैं जिंदा हूँ। एक शेर वालिद साहब के लिए मैंने कह रखा है, वो मैं यहाँ जरूर सुनाना चाहूंगा। हम भी जरूर सुनना चाहेंगे। जब तलक बाप मेरा जिंदा था, जब तलक बाप मेरा जिंदा था, मेरे कदमों तले जमीन थी यार। हाय 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 हाय, वाह वाह, क्या बात। बहुत खूबसूरत है। मैं एक गजल ये सुना देता हूँ इरशाद। आपको। बेसबब कह कहा उछाला है, आहा, ये उदासी का हल निकाला है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत किया। अच्छे क्या यार। कह रहे हैं? बहुत बेसबब कह कहा उछाला है, आहा, ये उदासी का हल निकाला है। आहा, भूख दोनों को मार डालेगी, आहा, दरमियां आखिरी निवाला है। ओह, मुझको वहशत बढ़ाई जाती थी, आहा, मैंने उस्ताद मार डाला है। ओए, वाह, ओए, ओए, बहुत ओए, अच्छे। ओए, ओए, मैं उसे यूं संभाले फिरता हूँ, हाँ, वो हथेली का जैसे छाला है। हाय, ओए, ओए, क्या ओए, कह रहे हैं? नस्ल दर नस्ल हम हुसैनी हैं, आहा, सब्र का दश्त देखा भाला है। वाह वाह, हद बनाता है कैद खाना नहीं, आहा, इश्क मकड़ी का एक जाला है। वाह वाह, बहुत आला यार, बहुत आला। बहुत। अब मुझसे हांडी में जल गया था वो। आहा, जनाब भाई, मुझसे हांडी में जल गया था वो। मेरा महबूब कितना काला है। वाह 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 वाह। आपको तो छोटे होते ही घर वालों ने निकाल दिया था, फिर इतने साल किसने पाला है? कैमरा बंद इसीलिए कर। तो इनका नाम लाला है। नाइस। कैमरा बंद कर दें आप। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से 4 ऑप्शंस के साथ। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, कौन सा लम्हा आपके लिए नापसंदीदा होगा? ऑप्शन नंबर 1, कलाम पर चोरी का इल्जाम लगे। ऑप्शन नंबर 2, मुशायरे में सबसे आखिर में मौका मिले। ऑप्शन नंबर 3, साथी शोरा बिला वजह जेलस हूँ। बीवी से दाद ना मिले। शायर को दाद ना मिले तो बचता ही क्या है फिर। हाय। और बीवी से ना मिले फिर तो बिल्कुल ही मौत है। बिलाशुबा और बीवी से किसी को नहीं मिलती दाद। बीवी से दाद लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। शायर के लिए दाद और हुकूमत वक्त के लिए इमदाद ऑक्सीजन है जी। बिल्कुल ऐसा ही है।
شانی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے جی نہیں چاہ رہا کہ باتوں میں ٹائم ضائع ہو، اس لیے کچھ اور عنایت کر دیں. جی میں کچھ فردیات سنا جی دیتا ہوں. ضرور. جنید بھائی دیکھیے گا، بھلا بھیڑ کے چھتوں سے کس طرح تجھے شہد ملتا وفاؤں کا، آہا بھلا بھیڑ کے چھتوں سے کس طرح تجھے شہد ملتا وفاؤں کا، تجھے موتیوں کی تلاش تھی کسی کوئلے کی دکان سے، بہت اچھے. بہت اعلیٰ. اتنی حسرت سے میں نے دیکھا تھا، آنکھ بھر آئی تھی کھلونے کی، واہ 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 آنکھ واہ. بھر آئی تھی کھلونے کی. کیا کہنا. اف. اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کر مالک، خواب اوقات میں رہ کر نہیں دیکھے جاتے. واہ واہ واہ، بہت خوبصورت. اوقات کیا سے رہ کر کہنے. نہیں دیکھے جاتے. آہا. واہ واہ. اور ایک شعر یہ میں سنانا چاہوں گا، ہم. تم محبت کی میم تک آؤ، آہا. تم محبت کی میم تک آؤ، ہاں. پھر خدا ہاتھ تھام لیتا ہے، آہا. خدا ہاتھ تھام لے. اور ایسے مہلت ملی ہے جینے کی آہا. جیسے رستے پہ گھاس اگائے. آہا. آہا. یار بہت اعلیٰ. بہت. میں یہ دو شعر بھی آپ کو سنانا چاہوں گا. ضرور. تم اپنے بخت پہ نازا نہیں ہو، حیرت ہے، آہا. ہم ایسے لوگ دعاؤں میں مانگے جاتے ہیں، آہا. دعائیں مانگ تیری عمر مجھ سے زیادہ ہو، آہا. آہا. تجھے میں جا کے دکھاؤں گا ایسے جاتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے.